Guten Morgen. Rustam. It's Rustam. Yes, guten Morgen. Wie geht's dir? Es mit dir sehr gut Es und geht mir gut. Es geht. Ja. Rustam, richtig. yes, Es geht mir gut. es geht mir gut. हाँ We was there? हैं? We want. हिंदी में बोलो क्या बोला पूछना है आप कहाँ से हो? हाँ वो हेयर कॉम्स टू वो है कौन वो सी हेयर हो? कॉमन जी वो है कॉमन जी। ये याद क्यों नहीं हो रहे हैं आप कैसे हो? वो वोंस क्या बोल रहे थे नहीं we wants there वॉन्ट तो कोई ये तो इंग्लिश है व्हाट वॉन्ट यू we want you तो वर्ब क्या है वो वॉन्ट्स टू वो wants do वो वॉन्ट्स टू वो wants do वॉन्ट्स फिर से वही वॉन्ट्स वॉन्ट्स wants टी लास्ट में आएगा वॉन्ट्स wants do मेरे से बात कर रहा है आराम से हो जाएगा वो वॉन्ट्स टू वो wants to वो wants Yeah. to. या आगे आगे रिप्लाई नहीं है हाँ पूछो किससे पूछना है इन नितिन तीनों में से से किससे पूछ रहे हो नितिन से पूछ रहा था Ich wohnt. इश वोट नहीं Ishwant. इश वोन है श्वोन है Ich wohne in Hyderabad. इस हैदराबाद से Ich wohne in Jaipur. 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 Jaipur Yes, Jaipur. Jaipur. ja इसे Dankeschön नाउ जेट गुड मॉर्निंग रुस्तम Guten Morgen. wie geht's Ihnen Es mir sehr gut. Es geht mir sehr gut. Es geht mir sehr gut. आगे तो बोल Und du? super Ich bin super. Super. Ich bin super या फिर es geht mir super. es geht mir super wohin kommen Sie हैं? वो हेयर wo है kommen Sie अब डू में पूछो वो हेयर कॉम्स टू where kommst du Woher kommst du? So, ich komme von Hyderabad, India. Correct. चलो बैठो हाँ नितिन Yes, sir. wie geht's dir अब It's like, सबके सब सुनो wie geht's dir Uh, uh, पहले सुन लो Okay, sir. Okay, sir. Sehr gut, sehr gut. हाँ. Und der? ja es geht mir auch gut so wo wohnst du Sir, wo wants to? Wo wants to? Sorry. Do wants? अरे मेरे लिए क्यों बता रहे हो ईश वो ने मैंने तुमसे पूछा है तुम कहाँ रहते हो और तुम मेरे को बता रहे हो तुम यहाँ पे रहते हो Ich wohne in Jaipur. Ich wohne in Jaipur. Okay. Rashmi, guten Morgen. Guten Morgen. Wie geht's dir? Gut. Gut. Okay. Ja. Also, Und dir? ja, mir auch wunderbar. Mir geht's wunderbar. Und ja, was magst du? What? What you are doing? You can. What you are doing? So अभी क्या कर रहे हो? Nacht. हाँ. तो was magst du? Ich lerne Deutsch. ich möchte lernen Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich mag du. मैंने सिंपल सा क्वेश्चन किया was marks टू ठीक है तुम क्या कर रही हो देन यू शुड रिप्लाई ich lerne Deutsch मैं जर्मन पढ़ रही हूँ दैट्स इट और या रुस्तम वो wohnst du in Deutschland Ich wohne ist in Braunschweig. दोबारा से आपने दो वर्ब यूज किए क्या ich wohne ist भी बोला है क्या Ich wohne in हाँ, Braunschweig. I said East also, yeah. okay und Nitin wie alt bist du Wie alt bist du? hm Ich bin alt. Nee, ich bin 19 Jahre alt.
Ich bin 19 Jahre alt. Okay. 19 Jahre alt. गेट खोल देना. Okay. Woher du? Entschuldigung? Woher kommst du? Kommst नहीं होता, kommst du. Woher kommst du? Ich komme aus Jaipur. Und also, ja, Rashmi, was machst du von Beruf? Was bist du von Beruf? नहीं समझा सर. Was bist du von Beruf? Beruf? Beginning. Jay, was bist du von Beruf? Student. Ich bin Student. हाँ. Ravi? Was ist dein Hobby? Mein Hobby ist Cricket. Ja. Cricket spielen. Cricket spielen, है ना? Mein Hobby ist Cricket spielen. Und Rustam? Weg. Okay. Rashmi? No, Okay. mein Hobby ist spielen Cricket. नहीं, क्रिकेट स्पीलन. क्रिकेट spielen. खेलना. खेलना क्रिकेट नहीं बोलते हैं. ओके. सो रश्मि, आंसर आया? Was bist du von Beruf? I'll be away for 2 minutes. बेरूफ का मीनिंग भूल गई सर. एक बार बता. वो काम धंधे थे ना, जो पूरी की पूरी लिस्ट लिखवाई थी. पूरी की पूरी लिस्ट लिखवाई थी ना. लेरर, फिर फीमेल में हो जाता है लेररिन, फारर, फाररिन. वीडियो ही पॉज हो गया. मैंने सर आवाज नहीं आ रही. सर अभी भी नहीं आ रही. नहीं आ रही सर बिल्कुल भी. Was bist du von Beruf, Rashmi? सर अब आ रही है. Ich lerne Deutsch. Ich bin Studentin. Ich lerne Deutsch, तो वो हो गया. आप क्या कर रहे हैं? खैर सही है कि हाँ, ich lerne Deutsch, उसमें अगले क्वेश्चन का भी जवाब दे दिया. कोई अगर ये पूछ ले कि हाँ ich bin Studentin, तो अगला क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि अच्छा was lernst du या फिर was studierst du. तो आपने दोनों का ही जवाब एक साथ दे दिया कि हाँ. ओके, ठीक है. लेकिन प्रॉपर जो आंसर आएगा ich bin Studentin. Ich bin Studentin. अच्छा, अभी तक भी आप लोग जो हैं इतनी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं जो रिक्वायर्ड है एक्चुअली. इसी वजह से ना वर्ब का कॉन्जुगेशन सही हो रहा है. कॉम्स्ट होता है, कॉमेंस्ट बोल रहे हो. कॉमन वर्ब है, इसमें डू के साथ में क्या होता है? कॉम्स्ट. ये होता है. तो
अब इस तरह की मिस्टेक्स मत किया करो, है ना। फिर यूं लगता है कि अभी तक तो वो फर्स्ट डे वाली क्लास ही चल रही है। ओके। और दूसरा जो है, ये जो फॉरेस्टेलम वाले क्वेश्चंस हैं, आप उनको पढ़ो और समझो उनके मीनिंग क्या हैं। अदरवाइज तो आप ये सोचने में लगा दोगे टाइम कि हाँ इसका जवाब अब क्या दूं। ओके। अपन जो पढ़ रहे हैं एक्चुअली, मेरे हिसाब से तो अपन आ चुके हैं अब आकुजाटिव पे। ठीक है, आकुजाटिव। अब आकुजाटिव होता क्या है? आकुजाटिव क्या होता है? Ishmish dear dish. डियर डिश नहीं। अच्छा मैं बताता हूँ। क्या होता क्या नहीं, कौन सी चीज होती है? हाँ, कल अपन ने जैसे सबसे पहले ये देखा, ठीक है, ये सारी वर्ब्स कि कुछ एक वर्ब्स जो होती हैं इर्रेगुलर वर्ब हैं, जिनका कॉन्जुगेशन डू और एरएसजी के साथ में डिफरेंट होता है। तो ये वर्ब आपको याद करनी है और कोई तरीका नहीं है, आपको याद ही करनी पड़ेंगी, और डू के साथ में स्पेशली। ठीक है। फिर अपन ने थोड़े बहुत ये एग्जाम्पल देखे थे। अब हाँ, इस चार्ट से समझाने की कोशिश करते हैं आपको। ओके। अब सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट चाहिए, ठीक है, सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए और ऑब्जेक्ट चाहिए। और ऑब्जेक्ट चाहिए, राइट। ठीक है, ये तीन चीजें तो चाहिए ही चाहिए। ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट जो होता है वो नॉमिनेटिव होता है। सब्जेक्ट जो होता है उसको नॉमिनेटिव भी बोल सकते हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्ट जो होगा वो दो फॉर्म में होगा, या तो आकुजाटिव फॉर्म में या डाटिव फॉर्म में। अब मैं फॉर्म, एक पर्टिकुलर वर्ड यूज कर रहा हूं फॉर्म में। अब जो जैसे मैं से मुझे बन रहा है या मुझको बन रहा है, तो यानी मैं की फॉर्म चेंज हो रही है ना, मैं की फॉर्म चेंज हो रही है। तो ये जो फॉर्म है इसका नाम जर्मन में दे रखा है आकुजाटिव और डाटिव। तो ये जो है अपने प्रोनोमेन सीखे थे कि ये सारे प्रोनोमेन हैं। अब ये इश का मिश बन जाएगा या मियर बन जाएगा, ये इसकी फॉर्म चेंज हो रही है। तो इनका नाम अलग अलग दिया हुआ है कि आकुजाटिव ऑब्जेक्ट ये होगा और डाटिव ऑब्जेक्ट ये होगा। ये दोनों कभी भी सब्जेक्ट नहीं बन सकते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट यही होगा, ये ऑब्जेक्ट का ही काम करेंगे। या तो आकुजाटिव ऑब्जेक्ट होगा अकॉर्डिंग टू वर्ब, या फिर डाटिव ऑब्जेक्ट होगा अकॉर्डिंग टू वर्ब। ये कभी भी सब्जेक्ट नहीं बन सकते हैं, ठीक है। मुझको पेन दो, अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? मुझको पेन दो। मैंने सब्जेक्ट, जो हिंदी वही वाली बात है कि हिंदी के अंदर मैंने इसको बिना सब्जेक्ट के बोल दिया, लेकिन जो पेन दे रहा है, जो पेन देगा, वो सब्जेक्ट है। तुम मुझको या आप मुझको पेन दो, तो ये तुम या आप जो कि मैंने शब्द नहीं बोला है उसमें छुपा हुआ है, लेकिन जर्मन में उसको यूज करना ही पड़ेगा। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। हिंदी में ये फ्रीडम है, अपन बिना सब्जेक्ट के भी यानी सब्जेक्ट, बिना सब्जेक्ट के सेंटेंस नहीं बनता, लेकिन उसको छुपा देते हैं, उसको बोलते नहीं है लेकिन वो उसमें है। मुझको पेन दो, तो तुम मुझको पेन दो या आप मुझको पेन दो, ये नहीं बोल के डायरेक्ट यूं बोल दिया। लेकिन मुझको इसमें सब्जेक्ट नहीं हो सकता, मुझको तो दिया जा रहा है, मैं काम थोड़ी ना कर रहा हूं, मैं तो मांग रहा हूं, ठीक है, मैं तो मांग रहा हूं, लेकिन जो देगा वही तो सब्जेक्ट है। तुम मुझको पेन दो, ओके। तो ये मुझको, मुझे, ये कभी भी सब्जेक्ट नहीं बन सकता है। सब्जेक्ट होगा या तो ये, या फिर कोई नोमेन, ठीक है, या फिर कोई नोमेन। तो अब जब अपन आकुजाटिव में चल रहे हैं तो इस लाइन को भूलो मत, इसको कंसीडर नहीं करना है। अपन को सिर्फ यही कॉलम जो है इसको कंसीडर करना है ऑब्जेक्ट के लिए। और मैंने आपको बताया था कि आकुजाटिव, नॉमिनेटिव वर्ब हैं ये सिर्फ 4,
ज्यादा टेंशन ही नहीं है, सिर्फ 4 हैं। इनके अंदर जो ऑब्जेक्ट होगा वो भी नॉमिनेटिव फॉर्म में होता है, वो भी नॉमिनेटिव फॉर्म में होगा। और बाकी डाटिव की लिस्ट आपको लिखवा दी है, तो नॉमिनेटिव और डाटिव में ना हो कोई वर्ब तो वो किस में मानेंगे? आकुजाटिव में मान लेंगे एक बार, तो उसके हिसाब से अपन सेंटेंस बनाएंगे। तो आकुजाटिव के लिए ऑब्जेक्ट के लिए एक तो ये लाइन अपन ने सीख ली, ठीक है, और दूसरा जो है अपन ने आर्टिकल के साथ में सीख लिया था कि डेयर का देन हो जाता है, ये तो सेम ही रहता है, ऐसे ऐसे। इसको अभी कंसिडर मत करना, ये आपके कोर्स के बाहर का है अभी तक, तो 2-3 दिनों में आ जाएगा, लेकिन अभी छोड़ो इसको। तो अभी तक अपन ने ये सीखा है और ये सीखा है, ये 2 चीजें सीखी हैं, ठीक है। तो इसमें आकुजाटिव की लाइन ये है और इसमें आकुजाटिव की लाइन ये है, बीच वाली। क्लियर है? अब मैं बोल रहा हूं इश बिन आइन लेरर। लेरर का आर्टिकल क्या होता है? देयर, there, ठीक है। अभी तक अपन ने क्या सीखा है कि आकुजाटिव में आर्टिकल चेंज हो जाता है, यानी आइन का आइनन हो जाता है, लेकिन इश बिन आइन लेरर, ये आइन का आइन ही क्यों रहा? क्योंकि वर्ब कौन सी है? जाइन वाली, और अपन ने सीखा है जाइन वर्ब क्या है? नॉमिनेटिव, नॉमिनेटिव है, इसमें आ रहा है, तो इस वजह से इश बिन आइन लेरर, तो वो आइन लेरर ही रहा, उसमें चेंज नहीं हुआ, तो उसमें नॉमिनेटिव वाली लाइन ही यूज करेंगे। तो इनके लिए ये वर्ब हो और ऑब्जेक्ट हो तब अपन को यही लाइन यूज करनी है। क्लियर है? yes, है ना? ओके। और मैं बोल रहा हूं मैं हूं, इश बिन इश, तो तब भी एक ही यही लाइन, मैं हूं, मैं तो ऐसा ही हूं, है ना, अजय देवगन टाइप में, तो मैं हूं। तो अपन वो एक एग्जांपल दे दिया, इस तरह के सेंटेंस बोलते नहीं है वैसे तो, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि ये वर्ब होगी तो ऑब्जेक्ट भी नॉमिनेटिव में ही होगा। तो इश बिन आइन लेरर, आइनन लेरर नहीं बोलेंगे, ओके। तो ये 4 ओके हैं। बाकी अब अपन कर रहे हैं आकुजाटिव। तो अब आकुजाटिव में है तो ये ऑब्जेक्ट यूज होंगे, या ये होगा यूज, या ये होगा यूज, इन तीनों में कंसीडर करेंगे अपन। या तो प्रोनोमेन होगा या फिर नोमेन होगा। नोमेन होगा अगर बेस्टिम्ड आर्टिकल होगा तो ये लाइन यूज करेंगे, और अनबेस्टिम्ड होगा तो ये लाइन यूज करेंगे। इतना तो क्लियर है? जय, हाँ, अगर मैंने क्या बोला, अगर नोमेन होगा, प्रोनोमेन होगा तो ये वाली लाइन यूज करेंगे आकुजाटिव ऑब्जेक्ट के अंदर, और अगर नोमेन आ जाएगा तो और बेस्टिम्ड आर्टिकल होगा तो ये वाली लाइन, और अनबेस्टिम्ड होगा तो ये वाली लाइन। इतना क्लियर है? अब ये इतनी कथा क्यों बोल रहा हूं मैं? रीजन ये है आप लोगों का, एक तो हाँ, होमवर्क क्यों नहीं करते हो? सिर्फ 2 जनों ने भेजा है, मत किया, याद आ गया था मेरा, हैं? रात में बैठ रवि और नितिन ने किया है, बाकी क्या है? लेट हो जाता। चलो, इतने छोटे बच्चे हो नहीं कि मैं आप बोलूं कि कान पकड़ के खड़े हो जाओ, है ना? तो होमवर्क किया करो प्लीज, आप लोगों के लिए है, प्रैक्टिस तभी होगी। आप लोग जब होमवर्क ही नहीं कर रहे हो तो मैं कैसे समझूंगा कि आप लोग अलग से भी कुछ प्रैक्टिस कर रहे होगे ना? लगता ही नहीं है। अपना पूरा शेड्यूल इतना बिजी है, बहुत कम टाइम है। अपन ठाले बैठ के चाहे मोबाइल में यूट्यूब के वीडियोस देख लेंगे, इंस्टाग्राम पे टाइम वेस्ट कर लेंगे, बट जो फ्रूटफुल चीज होंगी उसके लिए टाइम नहीं निकालेंगे। निकालो, हाँ ना, थोड़ा बहुत समय निकालो अपने लिए भी। ओके, बाकी जो है नितिन, 2-4 सेंटेंस आपके गलत हैं, अभी वो देखेंगे। रवि बाद में तो ठीक किए हैं, लेकिन शुरू के तो पता नहीं क्या है, चक्कर क्या है, मैं सर और बाद में चलो फिर भी ठीक है। मैं सर 2 बार चेक किया था मैंने, तो सही लगा वो मैंने दिया उन्होंने। अब चेक करना, अब आप ही लोगों से करवाऊंगा मैं। अब इसमें ये बताओ, ही हैज ए डॉग,
सब्जेक्ट क्या है? Air. Sorry sir. ही है ही का क्या बनता है? एयर एयर, ठीक है। और वर्ब कौन सी यूज करेंगे? Heart. हैं? Heaven. हाबन हाबन ना अरे कोई हेवन बोल रहा है नितिन। Heaven. हाबन 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 हाँ, जो च्युइंगम मुंह में है ना, जिससे बोला नहीं जा पा रहा, उसको थूक लो या तो। हेवन, हावन, हावन। तो हावन। एयर के साथ में हावन वाली वर्ब का क्या कॉन्जुगेशन होता है? एयर हार्ट। हार्ट चलो पार्टी करते हैं। एयर हार्ट। हार्ट अब ए डॉग, अब अपन ने अभी अभी देखा है कि जब बिस्टिम्ट आर्टिकल, सॉरी, बिस्टिम्ट आर्टिकल है तब तो ये लाइन, और उन बिस्टिम्ट है तब ये लाइन। तो उन बिस्टिम्ट में आ गए क्योंकि ए डॉग लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सी लाइन, कौन सा है? ये वाली लाइन। और आर्टिकल क्या होता है? हुंड का। डॉग का क्या होता है आर्टिकल? डॉग का तो नहीं है, हुंड का डेयर होता है। डेयर Dare। यानी कि ये मास्कुलिन, तो डेयर में क्या बन जाएगा, यानी आइन का क्या बन जाएगा? आइनन, आइनन ठीक है, आइनन। एयर हार्ट, आइनन हुंड। एयर हार्ट, आइनन हार्ट हुंड। आइनन हुंड। चलो रवि, क्या लिखा था? मैंने लिखा था सर इस्ट आइन हुंड, और मैंने रवि ने क्या लिख दिया? एयर इस्ट लिख दिया, गलती ईस्ट आइन हुंड। से कैसी जगह। और उसने मतलब ही इज डॉग लिख दिया। ही इज डॉग। ही इज द डॉग है। किसके ऊपर गुस्सा आ रहा था? खुद पे ही आ रहा होगा हैं? कर रही थी मेरे ख्याल से शुरू ही की होगी। हाँ, जब ही, फिर उसके बाद में धीरे धीरे जब अंदर गई और तब दिमाग काम करने लगा है। और शुरू शुरू के अंदर तो हाँ, एरिस्टाइन हुंड, वो एक कुत्ता है। कहाँ पहुंच रहे, क्या ख्यालात हैं? अच्छा, ही का तो एयर, ठीक है, ईस्ट लगाया। अब चलो इससे भी अपन थोड़ी बहुत ग्रामर समझते हैं। अब अपन फिर से उसी जाइन वाली वर्ब में है, जाइन वाली वर्ब में है। तो जाइन वाली वर्ब में जो ऑब्जेक्ट आएगा वो किस फॉर्म में आएगा? नॉमिनेटिव फॉर्म में आएगा। Nominative form में. जब अपन को पता है जाइन, हाइसन, वेर्न और ब्लाइबन जो है नॉमिनेटिव वर्ब हैं, तो उसमें ऑब्जेक्ट भी नॉमिनेटिव में आएगा, ठीक है। एयर ईस्ट आइनन हुंड नहीं हुआ है यहाँ पे, ये आइन हुंड ही रहेगा बिकॉज इस वर्ब के। अब यहाँ पे क्या हुआ है? ये अकुजाटिव है, ये अकुजाटिव, इसके अंदर इसकी फॉर्म चेंज हो गई है, ठीक है। ये सेंटेंस इन्होंने रॉन्ग बनाया है, यानी इसके हिसाब से। वैसे ग्रामेटिकल राइट है कि एयर ईस्ट आइन हुंड, राइट। ग्रामेटिकल राइट है। आइनन तो नहीं किया था, एक सेकेंड, एरिस्टाइन हुंड तो ठीक है। लेकिन यहां पे ही इज ए डॉग ये बोला, और ही हैज ए डॉग के अंदर आइनन हो जाता है वो। ये समझ में आ रहा है क्या जो मैं कहना चाह रहा हूं? कि ये जाइन वाली वर्ब है, इसके हिसाब से नॉमिनेटिव ही चलेगा, लेकिन यहां पे अकुजाटिव बन गया ऑब्जेक्ट। क्लियर है इतना? हाँ, तो इसका मतलब क्या निकल रहा है? अब समझ में आ रहा है? कहाँ ध्यान था? नहीं, अब सुनो, मेन चीज आप लोग जब इसी में अटका के रखोगे ना मेरे को, तो अब शुरू में कौन पूछ रहा था कितने टाइम में A1 हो जाएगी वगैरह वगैरह? मैं पूछ रहा था। अब ये बताओ, अब मैं कैसे आगे की चीजें कवर करूं? आप लोग यही सही नहीं करोगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? तो आप लोग थोड़ी प्रैक्टिस करो। मेरे कहने का मतलब नटशेल में बात यही है कि प्रैक्टिस करो ताकि अपन आगे का कुछ भी, आगे के टॉपिक्स भी पढ़ें। अदरवाइज तो मैं आगे तो बढ़ जाऊंगा, पीछे का तो क्लियर हो नहीं रहा है। अभी तक भी आप लोग एक दूसरे से इंट्रोडक्शन यानी सवाल भी पूछते हो, वी गेट इज दियर बोल के, उंड उंड उंड, अब वो उंड के आगे कुछ निकल ही नहीं रहा है। उन दियर,
ठीक है, und ihnen, ये वर्ड्स दिमाग में फटाफट आ जाने चाहिए। अब काफी टाइम हो गया है ना। एस गेट मियर गुड, आप पल्ला झाड़ लेते हो वंडरबार बोल के। शुरू मैंने कहा है कि आप वंडरबार भी बोलोगे तब भी ठीक है, लेकिन शुरू में तो पूरी लाइन बोला करो ना। ये तो तब की बातें हैं कि आप एक्सपर्ट बन गए और उसके बाद में हाँ विकेट दिया वंडरबार, बहुत बढ़िया शानदार, लेकिन शुरू में तो पूरी लाइन तोते की जैसे रटो अभी तक तो, ठीक है। एस गेट मियर वंडरबार, एस गेट मियर जू पर, ठीक है। तो शुरू में तो वो पूरी लाइन बोलने की कोशिश करो ताकि वो जुबान पे तो चढ़े, कैसे बोलना है, कैसे रिप्लाई देना है। और फॉर स्टेलों के अंदर वी आल्ट बिस टू, आल्ट को दो बार यूज करते हो। इश बिन आल्ट 20 Jahre alt, इश बिन आल्ट 20 Jahre alt, पता नहीं किस तरह से जवाब दे रहे हो, ठीक है। कॉन्सेंट्रेट किया करो, झिझको मत। यहाँ पे कोई वो नहीं हो रहा है कि पुलिस आ जाएगी या आपके मार्क्स खराब हो जाएंगे, कोई एग्जाम नहीं है। और ऑल यू आर क्लासमेट्स, ये भी मत झिझको कि हाँ यार मेरी बेइज्जती हो जाएगी, हाँ कि मैं गलत पूछ लूंगा तो बेइज्जती हो जाएगी। काहे, ये क्या सोचना, आप लोग सब लर्नर हो, बिगनर हो, मिस्टेक हर किसी से हो रही है। तो ये झिझक छोड़ के ढंग से पढ़ो, या इसलिए चाहे कॉपी लेके खड़े हो जाओ पूछते टाइम, लेकिन गलत मत बोलना। ओके, कम टू द पॉइंट। तो यहाँ पे एर हाट आइनन हुंड, तो आइनन हो जाएगा बिकॉज हुंड का आर्टिकल इज देयर, मास्कुलिन है। तो मास्कुलिन में उन बेस्टिम्ड आर्टिकल वाले अपन उसमें टेबल में देखेंगे तो आइन का आइनन होता है। क्लियर है। शी हैज ए फ्रेंड, ही इज पीटर। हाँ, वो उसका एक दोस्त है और वो पीटर है। हाँ, अब सबसे पहली बात, सब्जेक्ट क्या है? शी। आप जर्मन में बोला करो डायरेक्ट, एस। शी का एस होता है? जी। गुटन मॉर्गन। गुटन मॉर्गन, जी। हाँ, इसका होता है जी, यानी सब्जेक्ट क्या है? जी। और वर्ब कौन सी आएगी? हाबन। हाबन का कॉन्जुगेशन जी के साथ में हार्ट। और फ्रेंड को क्या बोलते हैं? फ्रॉइंड। फ्रॉइंड का आर्टिकल देयर, मास्कुलिन है। तो मास्कुलिन का अकुजाटिव में क्या बनता है? आइनन। हाँ, तो क्या सेंटेंस बना? जी हाट आइनन फ्रॉन्ट। जी हाट आइनन फ्रॉइंड। सी हाट आइनन फ्रॉइंड। और यहाँ पे ही इज पीटर, तो इसके अंदर सब्जेक्ट क्या है? एर इस्ट पीटर। एर इस्ट पीटर। चलो, एर इस्ट पीटर। और मैं यहाँ पे बोल दूं हिज नेम इज पीटर, तब क्या सेंटेंस बनेगा? एर हाइस्ट इस्ट पीटर। एक सेकेंड, दोबारा। एर हाइस्ट पीटर। एर हाइस्ट पीटर। उससे पहले क्या बोल गए थे? एर हाइस्ट ईस्ट पीटर बोल दिया था। वाई टू वर्ब्स? यस। जर्मन में एक वर्ब सिर्फ, दो वर्ब का कॉन्सेप्ट अपन बाद में सीखेंगे। तो एर हाइस्ट पीटर, ही इज पीटर की, एर इस्ट पीटर की जगह क्या हो जाएगा? एर हाइस्ट पीटर। एर हाइस्ट पीटर, राइट, ठीक है ना। और अगर आप बोल रहे हो कि उस एर इस्ट, एर का मतलब क्या होता है? वह, उसका थोड़ी ना है, उसका नाम पीटर है। तो वो टेबल अपन बाद में सीखेंगे, ये पर्सनल प्रोनोमेन के अंदर आएगा, ठीक है। एक्चुअली होगा क्या सीखेंगे अपन? यहां पे एक और कॉलम बनेगा फिर कि इश मिश मियर, यहां तक तो हो गया। मैं, मुझे, मुझको, और फिर मेरा, तेरा, ये थारा मारा होता है ना या तेरा, मेरा, उसका भाई, उसका दोस्त, उसका नाम है, मेरा नाम, मेरा भाई, मेरे पापा। तो वो कॉलम बाद में सीखेंगे अपन,
रिलेशन वाला। मैं ये बोलते एयर इज नाम है पीटर। एर इस्ट नाम पीटर कैसे बनेगा? वो नाम पीटर है, क्या बोलना क्या चाह रहे हो? तो एर से बनेगा ही नहीं। ओके सॉरी, एर नाम है, ये वाला लाइन नहीं बैठेगी। उसके लिए एक्चुअली होता क्या है, एर का इस पैजोनाल के अंदर क्या बन जाता है? जाइन। तो वो अपन चीज़ें बाद में सीखेंगे, उसको छोड़ो अभी, ठीक है? तो गुड मॉर्निंग, जो अभी तक अपन ने अभी तक की ग्रामर के हिसाब से एर हाइस्ट पेटर, तो आप दूसरी वर्ब यूज कर लो ना। अपन ने माइन नाम है, अब यहाँ पे माइन नाम है, मेरा नाम, माइन नाम है, ईयर नाम है, दाइन नाम है, ये तो अपन ने सीख लिया क्योंकि रट लिया अपन ने। ये बनता कैसे है ये अपन बाद में सीखेंगे। तो अभी इस वाले कमरे में मत घुसो, ये समझ लो, अभी धूल रहने दो, वहाँ पे थोड़ा सा जम जाने दो, बाद में खोलेंगे फिर साफ करेंगे उसको भी, ठीक है? अभी उधर घुसना ही नहीं है। अभी तो जो रटवाया है कि माइन नाम है इस्ट लाभ लाभ लाभ, वो चीज़ें चलने दो, ठीक है? तो एर के साथ में क्या होता है? एक्चुअली जाइन होता है। तो लेकिन अभी उस पर ध्यान ही मत दो, अभी अपन दूसरी वर्ब यूज कर लेंगे, एर हाइस्ट पेटर। एर हाइस्ट पेटर, तो यहां पे क्या बन सकता है? एर हाइस्ट पेटर। पॉइंट। ओके, दे आर हेल्दी। दे, रश्मि, सब्जेक्ट क्या है? Mute, mute, mute. जी हाँ, जी कौन सा वाला? जी दे ऑल वाला। दे, हाँ प्लूरल वाला, ऐसे बोलो। जी कौन सा? प्लूरल वाला, थर्ड पर्सन प्लूरल। तो जी और वर्ब कौन सी आएगी? जिन। जिन, यानी कि आपने कॉन्जुगेशन कर दिया, सही है। जाइन वाली वर्ब आएगी और उसका जी के साथ में जिंड हो जाएगा। तो जी जिंड, और हेल्दी को क्या बोलते हैं? गेसुन गे जी Gesom. जिंड गेजुंड, गेजुन गेजुन ठीक है? गेजुंड। रवि, गेजुंड। गेजुन हेल्थ को गेजन हाइट, हेल्थ को गेजन। मैं क्या लिख रहा हूं यार? गेजुंड, ठीक है? जी जिंड गेजुंड। अब यहां पे जिंड लगाया है तो एडजेक्टिव वाली बात हो रही है। अपन ने सीखा है जब नाउन होएगा तब हाबन वाली वर्ब यूज होते हैं, ठीक है? तो आपने नाउन यूज कर लिया गेजुंड हाइट, गेजुंड हाइट। और Yeah. गेजुंड हाइट का मतलब स्वास्थ्य है, हेल्थ, हेल्थ। और हेल्दी, मैं बोल रहा हूं हेल्दी, दे आर हेल्दी, नॉट हेल्थ, दे आर हेल्दी। समझ में आ रहा है अंतर? वो स्वस्थ हैं, वो स्वास्थ्य है नहीं बोलते हैं। अगर हिंदी में भी बोलूं तो वो स्वस्थ हैं, स्वस्थ और स्वास्थ्य में अंतर होता है, ठीक है? आप स्वस्थ हो ऐसे ऐसे ही बोलते हैं, या ऐसे बोलते हैं आप स्वास्थ्य हो? मैं थोड़ी ना स्वास्थ्य हूं भाई, मैं स्वस्थ हूं, ये हो गया। दूसरा इंग्लिश में समझाऊं तो दे आर हेल्दी, दे आर हेल्थ नहीं बोलेंगे, ठीक है? सेम ऐसे ही जी जिंड गेजुंड, जी जिंड गेजुंड हाइट नहीं बोलेंगे, वो गेजुंड हाइट है, वो स्वस्थ हैं, जी जिंड गेजुंड। क्लियर है? कुछ समझ में आया? हाँ, मैं जैसे मैंने आपको ये थोड़े बहुत एडजेक्टिव्स और उनके जो उनसे मिलते जुलते जो नोमेन हैं वो 2-4 लिखवाए थे, याद है? गेडुल्ड, हाँ, इश हाब गेडुल्ड और इश बिन गेडुल्डिश, इस तरह से कुछ शेख लिखवाए थे। वो पढ़ो और समझने की कोशिश करो कि कब जाइन वाली वर्ब यूज हो रही है और कब हाबन वाली वर्ब यूज हो रही है। इश हाब गेडुल्ड, आई हैव पेशेंस, और इश बिन गेडुल्डिश, इश बिन पेशेंट्स, पेशेंट, ठीक है? तो इस तरह से पॉइंट। आई एम ए बॉय, इश बिन आइन जुंग ein Junge, Ein Junge. युंग ich bin ein Junge। अब युंग का आर्टिकल क्या होता है? डेयर,
There. There. ठीक है, There. लेकिन ये यहाँ पे आइन का आइन ही रह रहा है बिकॉज ऑफ दिस वर्ब जाइन वाली। इसमें जो ऑब्जेक्ट आ रहा है वो भी नॉमिनेटिव फॉर्म के अंदर है। क्लियर है? तो ich bin ein Junge, और यहाँ पे है वी हैव ए कार। Wir haben Wir ऑटो haben का Auto. आर्टिकल क्या होता है? Einen. Einen. ein आएगा ना? आइन आएगा, दास होता है। only ein तो आएगा। दास के अंदर कोई चेंज ही नहीं होता है, आइन का आइन ही रहता है आकुजाटिव वाली लाइन में भी। तो wir haben Haben wir haben ein Auto। तो ये आया, और द कार इज रेड। das Auto Das ist Auto is दस ऑटो इज रोड। road. जय, कहाँ ध्यान है आपकी? तो आवाज ही नहीं आ रही है। Road का spelling क्या था? हाँ, सुन लिया मैंने। दस ऑटो इज रोड, दस ऑटो इज रोड। तो यहाँ पे वापस से जाइन वाली वर्ब। तो ये कॉन्सेप्ट को क्लियर करो अपने दिमाग में, अपने आप से ही समझो कि हाँ यहाँ पे जाइन वाली वर्ब यूज हो रही है, वहाँ पे हाबन वाली वर्ब यूज हो रही है, यहाँ पे हाबन और यहाँ पे जाइन। Sein. कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कब जाइन आएगा कब हाबन आएगा। अच्छा, रवि ने लिखा है दास इस्ट ऑटो रोट। ये Das. लाल नहीं, ये है लाल कार। नहीं, पता नहीं, ये तो कुछ बैठ ही नहीं रहा। अब दास किसके लिए यूज हो रहा है? किसके लिए? कार के लिए हो रहा है ना। तो दास ऑटो करो ना, यहां पे ले जाओ ना। दास ऑटो, दास हैंडी। हैंडी मैं अलग कर रहा हूं। दास इस्ट Das. हैंडी, दास ये भी चलो सेंस तो दे रहा है। दास इस्ट हैंडी। Handy कैसे Das है? ist Handy. यानी- Das ist Handynummer. हाँ चलो, नहीं रुको, कोई शब्द तो आए ढंग का। कुल मिला के मैं इसी से समझाने की कोशिश करता हूँ। छोड़ो दूसरे एग्जाम्पल को। दास ऑटो, ये कार लाल है। ऐसे ऐसे बोलेंगे ना, ये कार लाल है। आप हिंदी से मत सोचो कि ये लाल कार है, ये तो अलग बोल दिया, कार को कहीं और यूज कर रहे हैं, लाल फिर बीच में लगा रहे हैं। ठीक है, जर्मन के हिसाब से। अब das Auto ist rot, das Auto ist rot। तो सॉरी कहाँ थे? हाँ, wir haben ein Auto, wir haben ein Auto, Haben ein Auto. Das Auto ist das Auto ist rot। Das Auto ist rot. और अगर अपन ऐसे बनाना है, das ist Auto rot, तो ऑटो यूज मत करो, das ist rot, तब फिर भी ठीक है। तब समझ में आ रहा है दास किसके लिए यूज हो रहा है? कार के लिए। ये लाल है, ये फिर भी समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी ये स्किप मत करो, अभी तक जैसे स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हो उसी से चलो कि दास इस्ट सॉरी दास ऑटो इज रोड। फेलर। हाँ, नूमर्स एक्स कौन बताएगा? नितिन, तुमको नहीं बोलना है। रश्मि, रुस्तम या जय, इन तीनों में से कोई भी बोल सकता है। क्या सर? नूमर्स एक्स। Who is sleeping? हु के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है? Where? Where? Slav. Where? वी तो हाउ होता है। हु देखो क्या लिखा हुआ है। Where Where is Slav? is where is Slav? Where is Slav? Where is Where Slav? is Slav?
रुस्तम रुस्तम फिर से दो दो वर्ब। एक काम करो, 5-6 एक साथ लगाया करो। वेयर इज हार्ट, वेयर इज हार्ट श्लाफन। अब से ऐसे बोला करो, और भी एक और एक्स्ट्रा, तभी आदत जाएगी ये। Right. हाँ, Where? वेयर स्लेफ्ट, दैट्स इट। श्लाफन एक अपने आप में वर्ब है, सोना। आप लोग क्या पकड़ रहे हो, कौन सो रहा है। अब आप है को समझते हो कि हाँ इसका ये भी तो एक हिंदी में वर्ब है, जाइन। अरे वो कंटिन्यूस के अंदर कभी भी सेंटेंस बनता है तो वर्ब को ऐसे ही तो लिखा जाता है, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं। अब आप लोग क्या है, हूं को नहीं छोड़ रहे, लास्ट वाले को, मैं पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग। तो वो इंग्लिश से मत सोचो, जर्मन के अंदर एक अकेली वर्ब ही इन सबको रिप्लेस कर देती है, आप ये समझ लो। उस वर्ब का कॉन्जुगेशन या फिर जो अपन वो वर्ब यूज कर रहे हैं ना, कर रहा हूं और करता हूं, वो दोनों सेंटेंसेस सेम बनते हैं जर्मन के अंदर। वो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से समझ लिए जाते हैं, दूसरा आदमी समझ जाएगा कि हाँ वो कर रहा है या करता है, क्या बोलना चाह रहा है। जो सिचुएशन है उसके हिसाब से उसका मतलब निकल जाता है, दैट्स इट। वर्ब एक ही यूज होती है, ठीक है। कौन सो रहा है, तो इसके अंदर वेयर स्लेफ्ट, क्योंकि सोना जो वर्ब है श्लाफन, और कल अपन ने कॉन्जुगेशन देखा था कि ये इर्रेगुलर वर्ब है, उनरेगुलमेसिश, तो इसके अंदर डू या एरएसजी के साथ में इसका कॉन्जुगेशन चेंज होता है। तो वेयर स्लेफ्ट, वैसे तो श्लाफन है वर्ब, तो हु इज स्लीपिंग। और या तो नितिन आपने या फिर आपने वेयर को वियर लिख रखा है, सर वेयर लिखा मेरे को। वेयर आप स्लेफ्ट, फिर से वही श्लाफ्ट, यस सर सर umlaut वेयर स्लेफ्ट और फ्रागेज़ेशन, ठीक है। हु के लिए वर्ड यूज होता है वेयर, ये चीज अपन कर चुके हैं। अगर फिर से देखना है, नॉमिनेटिव में क्वेश्चन बनता है या तो वास से, ये क्या है वो क्या है, तुम क्या कर रहे, सॉरी नॉमिनेटिव में ये क्या है वो क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, वगैरह वगैरह। नहीं, यहाँ पे वी यूज होता है, सॉरी। तो ये क्या है, वास इज दास, वास इज दास, वास इज दास, यही होगा। अब कौन से होगा सेंटेंस, हु जब यूज करेंगे तब आएगा वेयर, तब यूज होगा वेयर। क्या यूज होगा, वेयर। Where? हु के लिए यूज होता है वेयर। और आकुजाटिव में जो क्या बोलते हैं, क्या का सेंस देता है ना, क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो, तब क्या होगा, वास, क्योंकि वास का मतलब होता है वाट। क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, ये सारे के सारे क्या किस में बनेंगे, वास के अंदर। बस और जब पूछ लिया किसको देख रहे हो, किसको सुन रहे हो, हैं किसको खा रहे हो, कुछ भी हो, जब इंसान से रिलेटेड बात हो, जब क्वेश्चन बने कि क्या किसको देख रहे हो, किसको ढूंढ रहे हो, किसको घूर रहे हो, ये सारे के सारे सेंटेंसेस किस में बनेंगे, वेन के अंदर, whom, ठीक है। whom इंग्लिश में होता है whom, और ये हो गया who, ये है whom। तो इनके मीनिंग क्लियर होने चाहिए, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो वेयर आएगा who के लिए, ठीक है। तो यहां तक हो गया अपना। अब जैसे अभी अभी अपन ने जो स्लाइड में देखा ना, क्या से क्वेश्चन बनेगा, तो क्या सुन रहे हो, क्या देख रहे हो, क्या पी रहे हो, क्या खा रहे हो, ये सारे के सारे किस में बनेंगे,
नहीं Was. वास से। क्वेश्चन was. किससे बनेंगे? वास से। Was. वास का मतलब होता है वाट। तो यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है वाट यू आर लिसनिंग, तुम क्या सुन रहे हो। तुम किसको सुन रहे हो ये वाली चीज नहीं है, तुम क्या सुन रहे हो। तो Was. क्वेश्चन किससे बनेगा? Was. वास। फटाफट बोलो, वास से। Was. ठीक है। Sie. अरे ये क्या है? Listening को नहीं पता क्या बोलते हैं। Was. हाँ। अब यहाँ पे वाट यू आर लिसनिंग, पहले तो ये बताओ सब्जेक्ट क्या है, फटाफट बताओ। Subject is you. यू। Sie. अब Sie. अब सब्जेक्ट है अकॉर्डिंग टू इंग्लिश यू, और डॉइच के अंदर क्या है यू का मतलब? Sie. Sie. जी भी होता है और डू भी होता है, हैं? भी। और ईयर भी होता है इवन, Yeah. है ना। तुम या फिर अगर मैं देखो ढंग से समझ में आएगा जब तुम ना यूज करके मैं तू बोलूं, तब आपको कोई डाउट ही नहीं रहेगा। तो कोई डाउट नहीं रहेगा, राइट। अगर अपन तुम बोल देते हैं ना तो वहां थोड़ा बहुत वो तो अपन चलो ठीक है अच्छी हिंदी बोल रहे हैं, संस्कारों वाली हिंदी बोल रहे हैं कि हाँ तुम करके बोल रहे हैं, लेकिन उसमें हमेशा डाउट रहता है तुम से मतलब एक अकेला है कि दो हैं या दो से ज्यादा हैं, तुम में ये क्लियर नहीं होता। अगर मैं समझाने के लिए तू यूज करूंगा तब आपको कहीं डाउट ही नहीं होगा। मैंने बोला तू, ठीक है, तो यानी कि एक ही है, तब वहां पे अपन को क्लियर है डू ही आएगा। तो आज से सीखने के पर्पज से अपन तुम ना यूज करके तू यूज करेंगे, और आप वाला जो सेंस होगा, जी वाला जो सेंस है ना, उसके लिए आप ही यूज करेंगे ताकि आपको डाउट ना रहे। तुम Yes. बोल के कंफ्यूज रहते हैं अपन, हाँ। ठीक है। तो या तो तू या आप, इसी में चलेंगे अब अपन, पैर डू या पैर जी। ओके। Pair do, pair do. यू का यहाँ पे जो है ना, एक्चुअली ये तो सब्जेक्ट है। अभी इसका यहाँ पे हो सकता है या तो डू भी हो सकता है, जी भी हो सकता है, या फिर ईयर भी हो सकता है। इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। तो अपन तीनों से एक एक बार बना के देख लेते हैं। ओके। अब वर्ब कौन सी है? लिसनिंग। Listening. Listening. हाँ, तो इसका क्या बोलते हैं ऑफ डॉइच? Huren. देखो किसी का भी प्रोनाउंसिएशन सही नहीं आ रहा है, क्या क्या बोलते हैं? Huren. फिर से गलत, ह्यूरन। Huren. Huren. ह्यूरन, Urine. Huren. ठीक है, ह्यूरन। अब सब्जेक्ट लेते हैं डू। डू के साथ में क्या कॉन्जुगेशन होएगा? हाँ। हाँ, सबसे पहले क्या लिखूं वे फ्राज वॉट में? Urist. सबसे पहले क्या लिखूं? वास। Was. अब वर्ब आएगी। हाँ, तो डू के साथ में क्या कॉन्जुगेशन हो गया? Was he? वाई जी। रश्मि, वेकअप। Do, do. जब मैं बोल रहा हूं डू से बनाना है अपन को, Do. और सेकेंड पोजीशन पे हमेशा वर्ब आएगी। वर्ब ऑलवेज एट सेकेंड पोजीशन। ये तो यानी जर्मन का सबसे बेसिक रूल है ये, इसमें तो इफ एंड बट है ही नहीं। तो वास अब आएगी वर्ब, तो डू के साथ में क्या कॉन्जुगेशन होगा? What? Do. वास हेयर्स्ट, Yours. वास हेयर्स्ट। डू खत्म। एक लाइन तो ये बन गई, वास हेयर्स टू। दूसरा जी के साथ में क्या बनेगा? रुस्तम। He urist. Z के साथ में वास का तो वास ही रहेगा, वास का वास रहेगा। वास तो वास ही रहेगा, बस चेंज होगा यहाँ पे। He urist. हाँ, अरे रश्मि प्लीज, हाँ? जी के साथ में Yours. पूरी की पूरी Yours. वर्ब आती है। हाँ। Z? He- अरे बड़ा वाला जी है ना। Z के साथ ह्यूरन होगा क्या सर? हाँ, जी बड़े वाले जी के साथ में तो ये वाले से urine. क्या हो गया एकदम से? Ian लगेगा। वीडियो देखना, जाओ तो पधारो। तो Z नहीं, मेरे को तो ह्यूरन कुछ भी होगा। नहीं दिख रहा। दिख रहा है?
बड़ा वाला चाहिए तो ये अलग है। दिखवाओ तो फिर चेक करवाओ। हाँ सॉरी, बीच में जय, हाँ जय वास का तो वास रह दिया। अब ये बताओ जी के साथ में वर्ब का क्या कॉन्जुगेशन होता है? Yes. human पूरी की पूरी वर्ब आएगी, एग्री और नॉट? Yes. agree. हाँ तो पूरी वर्ब क्या है? hören, Urine. hören, was hören Sie? Currency. Was. Currency. किसी किसी दिन आप लोगों की परफॉर्मेंस ऐसी लगती है कि वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हैं। आज पूरी की पूरी एनर्जी गायब लग रही है, सबके सब पता नहीं भांग खा के बैठे हैं। कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, जो मुंह में आ रहा है वही। अब चलो नेक्स्ट वन, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा? Was ear. Ear. Was. वास, ईयर के साथ में क्या कॉन्जुगेशन होगा? Heard. हर्ट, वास हर्ट ईयर। ये हो गया वास हर्ट ईयर। फिर फ्रागेज़ेशन लास्ट में। अब यहां पे शी इज ब्यूटीफुल लिखा हुआ है। तो सब्जेक्ट क्या है? जी. जी। जी. तो जी थर्ड पर्सन सिंगुलर वाला, Singular वाला. ठीक है। अब जी के साथ में वर्ब का क्या कॉन्जुगेशन होगा? वर्ब कौन सी होगी? shonen shown नहीं, वर्ब है जाइन वाली, Sign. मतलब होगा सर और एस आएगा. Is इस्ट आएगा। there. जी Shown. इस्ट शुड। There. अच्छा, वेरी लिखा हुआ है तो जेयर there There. Shown. और शुड, Sure. ठीक है। जी इस्ट जेयर शुड। ये वाला जो ऊपर वाला किया है ना, ये तीनों लिख लेना और तीनों को समझना तसल्ली से बैठ के। जब क्लास ओवर हो जाए, जब भी फ्री टाइम हो, हाउस ऑफ गाबर का करने का मूड हो, तब इन तीनों सेंटेंस को ढंग से देखना, समझना क्या हुआ है ना, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ही हैज मनी, ही हैज मनी, Air. Has. Heart. Heart. Heart है. एर हार्ट अपने को क्या बोलते हैं? Geld. गेल्ड, एर हार्ट गेल्ड, गेल्ड, उसके पास पैसा है भाई। हाँ, ही इज वेरी रिच, There is there rich. Air is. रिच, रिच को राइश, हाँ। Right. एर इस्ट जेयर There. Right. राइश, ठीक है। एर इस्ट जेयर राइश, समझ में आ रहा है ना अब तो? ठीक है। वाट ही इज सर्चिंग, वो क्या ढूंढ रहा है? यहाँ तो- पे कौन आएगा? Was. Air. Zooked. रश्मि, वर्ब सेकंड, was वाज एर जूक्ट की जगह वाज जूक्ट एर, हाँ. वर्ब सेकंड। subject plus verb plus anything else, subject plus verb वाज subject Air. Zooked. जूक्ट एर, क्वेश्चन मार्क, फ्रागेज़ेशन, वो क्या ढूंढ रहा है? तो वर्ब सेकंड पोजीशन पे होगी और फर्स्ट पोजीशन पे तब आएगी जब या नाइन फ्राग होगा। इसके अलावा कोई और सेंटेंस बनेगा ही नहीं। वर्ब तो सेकंड पे आएगी ही आएगी, दैट्स इट। ओके, वास जूक्ट एर, हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या आएगा? हेल्थ, Gesundheit. गेजुंडाइट। अब वो वाला वर्ड आएगा, नोमेन है। तो सब्जेक्ट क्या है? Gesundheit. गेजुंडाइट, सब्जेक्ट इज गेजुंडाइट और वर्ब कौन सी है? Sein वाली. एग्जैक्टली। तो गेजुंडाइट के साथ में क्या कॉन्जुगेशन होगा? Gesundheit is Zahar wichtig. sehr gut। There नहीं there. हाँ हाँ वही
ऐसे ही करना चाहिए तो समझ में आता है. Gesundheit ist sehr There. wichtig. Prestige. ठीक है ना? तो Gesundheit ist sehr wichtig. अब समझ में आया कि जाइन वाली वर्ब आएगी. थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है. Yes. Yes. और यहाँ पे जूखन वाली वर्ब लगा दी अपन ने. ठीक है. He loves me. अब यहाँ पे अकुजाटिव में बनेगा क्योंकि यहाँ पे वर्ब क्या है? Love. loves, love. तो लव के लिए कौन सी वर्ब यूज होती है? lieben. 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 हाँ, ये तो सबने याद कर ली होगी, है ना? lieben. अच्छा, नितिन ने पहले याद किया होगा. हाँ, ये तो जिस दिन जर्मन शुरू होती है ना उसी दिन. Yes. कि चलो बाकी चीजें तो बाद में पढ़ते रहेंगे. हाँ, lieben क्या होता है? हाँ, लव क्या होता है? he loves me. तो सब्जेक्ट क्या है? यार लाइफ पे अरे लाइफ्ट नहीं होगा, He. है ना? प्यार का कुछ और ही बन जाएगा. लाइफ्ट, लीप्ड. लीप सॉरी Live. हाँ, एयर And live. सब्जेक्ट है, एयर, है ना? Air. और लीबन जो वर्ब है उसका एयर के साथ में कॉन्जुगेशन हो गया लीप्ड. लीप और मी का क्या बनेगा? Mish. मेश. अकुजाटिव वाले कॉलम में देखा अपन ने, लीबन वर्ब है, लीबन इज अकुजाटिव, तो इश का मिश बन गया. ठीक है, मुझे प्यार करता है तो ही लव्स मी. ओके, तो एयर लीप्ड मिश. ओके, आई लव यू. Ish. Liber. फिर से लाइब. लीप इश लीब. Liber. लीप डिश Dish. Dish. इश लीब दिश. Liber. एक सेकेंड सोचने दो. Ish. Liber. इश लीब दिश. उसका dish होगा. हाँ, तो लाइब नहीं, वो लाइड होता है. लाइब. Do का dish ही होगा ना. हाँ, डू का दिश ही होगा, वो सही है. यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया, जैसे आपके मुंह से निकल गया लाइब. अब वो लाइब का मतलब क्या होता है? हाँ. लाइब का मतलब जहां तक मेरे को याद आ रहा है, लेट मी चेक, लेट मी सर्च, एक सेकेंड. लाइब, अब उसको बोलना नहीं आ रहा. मूटर लाइब, जहां पे बच्चा होता है माँ के पेट में, उसको क्या बोलते हैं? डेयर डेयर आ रहा था इसका लाइफ का. तो आर्टिकल देयर होगा, वो तो ठीक है, लेकिन उसका मीनिंग डियर डियर मीनिंग आ रहा था डियर. डियर. अपन डियर नहीं बोलते पर जैसे कोई डियर मैम, डियर सर. अच्छा, लाइब. Life का meaning. नहीं, कुछ और होगा क्योंकि एक्चुअली ये वर्ड जो मेरे को पढ़ा हुआ लग रहा है, मूटर लाइब. तो मूटर लाइब का मतलब हो गया, होता है एक्चुअली वो हिंदी में, प्योर हिंदी में बोलूं तो गर्भाशय, जहां पे कि बच्चा होता है पेट में मदर के, है ना? और उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे यार? बॉडी आ रहा है. बॉडी आ रहा है. चलो जो भी है, अब हो सकता है ये मोटर लाइव के साथ में ही आता हो. मोटर लाइव, Okay. है ना? मोटर लाइव. चलो छोड़ो इसको. तो लाइव का मतलब हो गया लाइव. पेट बता रहा है ना? नहीं सर, बेली भी है, स्टोमच बैली भी है. हाँ, अब आ रहे हो ना धीरे धीरे उस अर्थ पे. तो एक्चुअली होता है, बैली नहीं होता है वो होता है, उसको क्या बोलते हैं? गर्भाशय बोलते हैं एक्चुअली. तो आप सोचो आपके मुंह से क्या निकल रहा है, उसका सेंस कहाँ पहुंच रहा है वो. तो इसलिए मैं बहुत बार बोलता हूँ, सोच समझ के बोलो, उसका मीनिंग क्या पता कहाँ पहुंच जाएगा. हाँ, तो er liebt mich, ich liebe dich. Dish. liebe dich. ओके, Liber. तो डू का हो गया डिश,
इश लीब दिश, और जैसे मान लो यहाँ पे है ही लव्स मी बट आई लव यू, ही लव्स मी बट आई लव यू, तो बट को क्या बोलना बताया था? आबर। आबर। Aba. हाँ, वो अपन वैसे बाद में सीखेंगे क्योंकि वो उसकी पोजीशन, चलो छोड़ो। हाँ, तो यहाँ पे अगर अपन को ऐसे एक सेंटेंस बनाना हो, ये ना हो, पुंक्ट ना हो, तो एर लिफ्ट मिश आबर इश लीबदिश। सर आया भी है आबर का इसमें यूज के लिए। हाँ, आबर का सर यूज में आया भी है नीचे सेंटेंस नंबर 17। अच्छा आया है क्या? चलो, तो इश लीब एर लिफ्ट मिश आबर इश लीबदिश, चलो ऐसे भी समझ में आ गया, और ये तो समझ में आया ही आया है। इश लीबदिश समझ में आया ना? आकुजाटिव होता है, तो आकुजाटिव में डू का दिश हो गया, और यहाँ पे इश का मिश हो गया। इसका मिश। What are you doing? What are you doing? Was. Good. हाँ, क्या आएगा? क्वेश्चन क्या है? यानी what? वाज। Was. Are you doing? Was. ठीक है? Was. Was marks और doing verb है। रुस्तम don't use are, ठीक है? Yes. are को तो भूल Yes. जाओ, is Yes. है ना? तो verb है doing। Mach. Machen. Machen. हाँ, तो was machen du? do के साथ में conjugation प्लीज, marks to। Machst du? Was machst du? हाँ, Was machst du? वाज मार्क्स टू। तो जर्मन को मैथमेटिक्स से कंपेयर कर लो, इसके फॉर्मूले हैं, ये आएगा तो ये करना है, ये आएगा तो वो करना है, दैट्स इट। तो डू सब्जेक्ट पहचान गए, उसका कॉन्जुगेशन तो उसके हिसाब से करना है, तो वास मार्क्स डू। Was machst du? वहीं पे ये हो व्हाट ही इज डूइंग, व्हाट ही इज डूइंग, What he is doing? Was er? वास मार्क्ड एर, वर्ब सेकंड पे, Verb second पे आएगा, right? Verb second. वास मार्क्ड एर। Was marked er? वो क्या कर रही है? व्हाट शी इज डूइंग, Was marked sie? वास मार्क्ड जी, Was मार्क्स marked sie? वास मार्क्ड जी, ठीक है? Was ऐसे कुल मिला के marked वर्ब को सेकंड पे रखना है, सब्जेक्ट के हिसाब से कॉन्जुगेट करना है। ये कैलकुलेशन थोड़ा जल्दी जल्दी होने लग जाएगी, प्रैक्टिस करोगे तो। Yes. तो सबसे इंपॉर्टेंट अभी भी क्या है? सब्जेक्ट को पहचानना। सब्जेक्ट सही से नहीं पहचाना, ना कॉन्जुगेशन सही करोगे, ना सेंटेंस सही बनेगा। सब्जेक्ट को पकड़ लो सबसे पहले। तो व्हाट आर यू डूइंग, यू से हो गया, मान लो डू, अपन ने तो डू वाला यूज किया, तू क्या कर रहा है भाई, तो व्हाट आर यू डूइंग वास मार्क्स टू, और जी अगर यूज करेंगे वास मार्क्न जी, Was marked sie? मार्क्स marked नहीं, जी। वास मार्क्न जी। एक सेकेंड सर, ज्वाइन मत करना, कहीं गड़बड़ हो जाए। हैं? जय, अच्छा अभी अभी, ओके ओके। वास मार्क्न जी, वास मार्क्स टू, वास मार्क्ड एर, वास मार्क्ड जी, क्लियर है? और Correct. यहाँ पे व्हाट दे आर डूइंग, Was marked ear? दे, हेलो गुड मॉर्निंग, दे, तो जी प्लूरल वाला जी, वास मार्क्न जी, Big one. The big one, yes, sir. वास मार्क्न जी। Was marked sie? हाँ, रश्मि समझ में आ रहा है या हाँ। ऊपर से जा रहा है? नहीं आ रहा है उसमें। आ रहा है ना, ठीक है। दिस बॉय इज स्वीट, सॉरी बेबी इज स्वीट, दस बेबी, वही वाली गलती, दस इस्ट आउटो, वही वाली गलती है इसमें। बेबी दास के साथ में रखो ना, दस बेबी, बेबी इज जूस। जूस नहीं बोलना, उसका जूस नहीं बना रहे हो, ज्यूस, ज्यूस, हाँ सर ये बोल रहा हूँ मैं, जूस। नहीं, मुंह से निकल रहा है जूस, पता नहीं उसको मिक्सी में डाल के क्या जूस बनाओगे क्या सर? बेबी को। सर, दस बेबी इस्ट ज्यूस, जूस। हाँ, दस बेबी इस्ट ज्यूस। Meyer owned Meyer and Dieter. Why don't you have patience? Meyer und Dieter
Varun, half year, patient. खाइना गेटूल, अच्छा चलो ये मैं बता देता हूँ यहाँ पे वारुम हाफ्ट ईयर गेटूल निश्ट, चलो अभी तक आपको वो नहीं बताया काइना वाला, तो इस तरह से बना लो। लेकिन नितिन और रवि दो सब्जेक्ट हैं, तुम वाला सेंस दे रहा है, ईयर वाला सेंस दे रहा है, आपने दोनों ने डू के अंदर बना दिया। थोड़ा तो दिमाग लगाओ, दो जनों के नाम लिख रखे हैं साफ साफ। हार्ट ईयर होता है, हार्ट ईयर, हाफ्ट ईयर, सॉरी, हाफ ईयर। दोनों ने सेम मिस्टेक कर रखी है। मायर ओन डीटर, वारुम हाफ्ट ईयर, वैसे तो बनेगा खाइना गेडुल्ड, और लेकिन काइना अभी तक आप लोगों को सिखाया नहीं है, इसलिए वो नेगेटिव आर्टिकल कहलाता है वो आर्टिकल ही, लेकिन वो नेगेटिव आर्टिकल हो जाता है। चीजों को नेगेट करने के लिए जैसे आईना है ना, वो काइन काइना उस तरह से चलता है, ठीक है, लेकिन वो अपन बाद में सीखेंगे, थोड़ा 1-2 दिन वेट करने के बाद में। तो वाई डोंट यू हैव पेश, तो इसको दूसरे होगा थोड़ा गलत, लेकिन एक बार समझने के लिए ये बना लो कि वारुम हाफ्ट ईयर गेडुल्ट निश्ट, हाँ है ये गलत, आई नो दैट, काइना गेडुल्ट आना चाहिए, क्योंकि नॉमिन को निगेट करने के लिए काइन यूज करते हैं, क्योंकि उसका आर्टिकल है, और जिसका आर्टिकल नहीं होता है उसमें अपन निश्ट यूज करते हैं, जहां पे आर्टिकल नहीं है। ये चीजें मैं बताऊंगा आपको, बाद में क्लियर करेंगे। तो मायर या फिर सेंटेंस से ही लिख लो, सीखेंगे बाद में, या तो ऐसे कर लो, वारुम हाफ्ट ईयर खाइना गेडुल्ड, सेंटेंस सही लिख लो, सीखेंगे बाद में कि ये काइने कैसे हो गया। वारुम हाफ्ट ईयर खाइना गेडुल्ड, ओके। He has one son. He has heart ein Sohn. दोबारा से, एर हार्ट हार्ट आयनन जोन, आइनन, जोन का आर्टिकल देयर, मास्कुलिन, और मास्कुलिन क्या हो जाता है आकुजाटिव में, आइन का आइनन, एर हार्ट आइनन जोन। और मैंने लिख दिया उसका नाम पिट है, क्या बनेगा उसका नाम, Erheist Pit. एरहाइस्ट नाम, एरहाइस्ट, हाइसन वाली वर्ब को स्किप क्यों कर रहे हो आप लोग, एरइस्ट सीधा जाइन में, एरहाइस्ट पिट है ना, उसका एक बेटा है, उसका नाम पिट है, तो एरहाइस्ट पिट। अच्छा, कल जो है 9:30 बजे, ये मत बोलना कि बताया नहीं था, ग्रुप में नहीं भेजा वगैरह वगैरह, कल 9:30 बजे यहीं पे ही। सर कल ईद है और मुझे प्रेयर के लिए जाना है सुबह में 6 बजे सर। 10 तारीख को है ना ईद, तो आई थिंक यहाँ जर्मनी में एक दिन पहले हो जाती है सर। ओके 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 ओके, तो लेकिन मैं रश्मि और नितिन से बाद में बात करके समझ लूंगा क्या है। चलो ठीक है, आप वीडियो देख लेना है ना, बाकी तो हाँ वीडियो तो देखूंगा, वीडियो तो बाकी देखूंगा, तो बाकी तो प्रेजेंट रहेंगे, हाँ बाकी तो सर। हाँ टेस्ट भी होगा और थोड़ी पढ़ाई भी होगी, दोनों चीजें होंगी। Yes. जय, आवाज आ रही है? सर माइक भी ऑफ है, कैमरा भी ऑफ है। वो सुन रहा होगा, गाड़ी चला रहा था, वो सुन रहा होगा। यस सर, आ रही है आवाज। चलो ठीक है ठीक है। हाँ, दिस इज ए लैम्प बट इट इज डैमेज्ड। Das ist Lamp.
अरे लैंप का आर्टिकल भी होता है। Das ist eine Lampe. eine Lampe. Das Eine Lampe. ist eine Lampe. लैम्प हाँ, ये फेमिनिन है तो das ist eine Lampe. लैंप नहीं बोलना है, Lampe बोलना है। लैम्प हाँ, but it is damaged. Aber एस ईस्ट Sie ist. हाँ, दी लैंप है तो यहाँ पे जी लगाओ। sehr gut नितिन, क्योंकि फीमेल हो गया ना, फेमिनिन, तो फेमिनिन के अंदर डेर दी दास में कौन सा होगा? जी होगा। सॉरी, एर एस जी के अंदर जी होगा। Sie होगा। हाँ, तो जी इस्ट Sie ist. जी ईस्ट कपुट। कपुट। एक बार चेक कर लेना ये सही है या ये सही है। Sir, for example, you want to say that this is. Do you want to cancel it? डू यू वांट टू? Cancel it. Maybe you have given some order in restaurant, and I'm telling them just cancel it. I don't want it. ओके। Cancel. Do you want to cancel it? Cancel को भी कपूट ही बोलते हैं क्या? नहीं 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 नहीं, कैंसिल को कपुट नहीं बोलेंगे। इसमें यानी कि वहां पे मेष्टन वाली वर्ब यूज होगी। इस मेष्ट दस निष्ठ, यानी मैं ये नहीं चाहता हूं या फिर मैं इसको कैंसिल करना चाहता हूं, तो इस मेष्ट दस आप बूखन या फिर आप पिस्टेलन, आप वो वर्ब से ही कैंसिल कर देंगे अपन। जर्मन में बहुत सारी वर्ब्स हैं, बहुत बहुत वर्ब्स की तो कमी नहीं है, तो वर्ब से ही अपन जैसे इज एम आर जो है वगैरह, ये हेल्पिंग वर्ब है, उसका कोई रोल ही नहीं है उसके अंदर। अब यहाँ पे कैंसिल करना है, आई वांट टू कैंसिल इट, तो इश मेष्टे दस आप पेस्टेलन, आप पेस्टेलन मेरे को नहीं चाहिए। अगर रेस्टोरेंट में और अगर मैं टिकट कैंसिल कर रहा हूं तो टिकट कैंसिल के लिए दूसरी वर्ब यूज होगी। सोचो इतनी वर्ब्स हैं। सर हर एक चीज के लिए अलग हाँ, अलग है। वो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। मैं अगर रेस्टोरेंट में ऑर्डर को कैंसिल करना चाह रहा हूं तब मैं बोलूंगा इश मेष्टे दस आप बेस्टेलन, और मैं अगर टिकट कैंसिल करना चाह रहा हूं इश मेष्टे दस आप बूखन, क्योंकि वो मैंने बुकिंग की थी, बुकिंग को कैंसिल करना इज आप बूखन। आप बुखन। हाँ, और वो मैंने रेस्टोरेंट में क्या किया था? ऑर्डर किया था। ऑर्डर करने को बोलते हैं बेस्टेलन, अब मैंने अपना जो बेस्टेलन था उसको कैंसिल कर रहा हूं, देन आप पेस्टेलन। चलो अभी ये छोड़ो, इस पे आ जाओ वापस। नाउ आई एम स्लीपिंग, तो एम को नहीं देखना है। इश यत से नहीं है, यत्स्ट। हाँ, इश श्लाफ यत्स्ट, इश श्लाफ यत्स्ट या फिर यत्स्ट। श्लाफ श्लाफ इश, दोनों सही हैं। ओके, ये दोनों सही हैं। नेक्स्ट है ही इज रीडिंग द न्यूज़पेपर। एर हाँ, लाइस लाइस्ट, फिर लिस्ट लीस्ट। हाँ, एर लीस्ट। Er ist नहीं, er liest der Zeitung. नितिन, देर नहीं है, दी Zeitung। Die Zeitung, sir. Er liest die Zeitung। Die Zeitung. Er liest die Zeitung, वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। अब यहाँ पे eine Zeitung की जगह die Zeitung यूज किया, क्योंकि यहाँ पे भी द न्यूज़पेपर है, ठीक है। और यहाँ पे आ जाता he is reading a newspaper, तब यहाँ पे er liest eine Zeitung। समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं?
यहां पे Yes. अगर ए यूज होता, ही इज रीडिंग ए न्यूज़पेपर, तो यहां पे भी क्या कर देते अपन, ए लिस्ट eine Zeitung, दैट्स इट. नेक्स्ट, शी इज ड्रिंकिंग बियर, वो बियर पी रही है. Sie trinkt Bier. Beer. जी ट्रिंक्ड बियर. Sie. अच्छा, एक फिर से दिमाग में, पहले ये वाला बना लेते हैं, फिर क्वेश्चन आपको फिर से कंफ्यूज करने की कोशिश करूंगा मैं. पहले ये वाला बना लेते हैं. द किंग इज ब्रेव. The king. द किंग को क्या बोलेंगे, दे आर क्यूनिश. König. König. हाँ, Der König. East. Ihr König ist tapfer. Tapfer. एक और वर्ड है मूटिश. सर आपने शायद लिखवाया था मोटिश को. मूटिश. ओके, अब ये तो समझ में आ रहा है आपको आइनन कैसे हुआ. ये आकुजाटिव है, आकुजाटिव वाली लाइन में, ठीक है, कि आइन, आइने और आइन, मास्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल. Neutral. ये नॉमिनेटिव, और आकुजाटिव में क्या हो जाता है, ये आइन का आइनन, और ये आइने, और ये आइन का आइन ही रहता है. अब मैं ये पूछना चाह रहा हूं, ये कौन सा है, ये आकुजाटिव है, क्या है ये, डाटिव है या नॉमिनेटिव है, ये कौन सा दी है. पहले इस लाइन को पढ़ लो, एर लीस्ट दी साइटुंग. अब मैं पूछना चाह रहा हूं आप लोगों से कि ये दी कौन सा वाला है. अब यहां पे कितने सारे दी दिख रहे हैं, ये है, ये है, ये है और ये है. इन चारों में से कौन सा दिख रहा है आपको. प्लूरल वाला तो है ही ये नहीं. वाला. सर फेमिनिन वाला है. फेमिनिन में ये वाला है. नहीं सर, इसके जस्ट नेक्स्ट वाला, नीचे वाला. एग्जैक्टली वो दी कौन सा है, आकुजाटिव वाला है. आकुजाटिव वो वाला. हैं दोनों की दोनों दी ही, लेकिन अपन को इस दी से, इस लाइन से मतलब ही नहीं है. जब अपन को पता चल गया आकुजाटिव है ना, तो अपन को इस लाइन से मतलब ही नहीं है. अपन को तो इससे मतलब है, चाहे होंगे सेम ही होंगे, होंगे सेम ही, लेकिन अपन को लगाना कौन सा है, ये वाला. तो अगर कोई पूछे कि कौन सा वाला दी है या कौन सा वाला दास है, एक्चुअली मास्कुलिन तो हर बार चेंज हो जाता है, तो उसमें पहचानना बहुत इजी होता है. इसीलिए आप अगर गौर भी करोगे, मैंने ज्यादातर एग्जाम्पल लिए हैं मास्कुलिन के, ताकि आप लोगों को समझ आए. इसीलिए जान करके मैंने मास्कुलिन के एग्जाम्पल ज्यादा लिए, ताकि आपकी एक्सरसाइज हो. अच्छा, आकुजाटिव है, वो चेंज हो रहा है. अगर अपन सिर्फ दी यानी फेमिनिन और न्यूट्रल का ही लेंगे, तो आपको ये नहीं समझ में आएगा कि ये है कौन सा. अब मैं इसीलिए अलग से बता रहा हूं, ये वाला दी है, दो दी साइटुंग यूज किया ना, तो वो ये आकुजाटिव वाला है, क्योंकि वो आकुजाटिव है. लेजन एर लीस्ट दी साइटुंग, तो लेजन इज आकुजाटिव वर्ब. द किंग इज ब्रेव, ये हो गया. दिस टी शर्ट इज ओके, सो This das T-Shirt. Das T-Shirt ist ओके. और Das T-Shirt ist Das T-Shirt is Zolala. das T-Shirt Das T-Shirt ist ist Zolala.
या फिर ओके, ओके भी चलता है, Okay, yes. ठीक है। ये भी बोलते हैं जर्मन में। आर यू कमिंग, क्या तुम आ रहे हो? comes to हाँ, अब यहां पे यू जो है वापस से कंफ्यूजिंग है कि डू होगा, ईयर होगा या जी होगा बड़ा वाला। अब तीनों से ही बना लेते हैं फटाफट, लेकिन आर यू कमिंग, कॉम्स टू खत्म, डू के साथ में बन गया कॉम्स टू, क्वेश्चन पूछने अपन उससे। Right, sir. हाँ, मेरे ख्याल से रुस्तम को हंसी आई है, इसका Right, मतलब sir. वो एक और वर्ब दिमाग में घूम रही थी। Yes. हाँ, इसमें मत, दूसरे वर्ब में घुसो ही मत, कॉम्स टू। Consonant comes to. अब जैसे मैंने पूछा रुस्तम हेयर्स टू, सुन Yes. हेयर्स टू, तो आपको जवाब देना है हाँ या ना में, ठीक है, हाँ या इश्योर, Yeah, nine. इश्योर। Yes, 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 sure, and yes. अब मैं पूछ रहा हूँ हेयर्स टू मिश, अब रिप्लाई में या इश्योर दिश। Yes. मैंने पूछा क्या तुम मेरे को सुन रहे हो, हेयर्स टू मिश या इश्योर दिश, मैं तुमको सुन Yes, रहा हूँ sure. या फिर मैं तुझे सुन रहा हूँ, हाँ, ठीक है। वो तुम में हमेशा कंफ्यूजिंग रहता है। हाँ, क्या तू सुन रहा है, और हाँ तू जवाब दिया हाँ मैं तुझे सुन रहा हूँ, दैट्स इट, हाँ. इश हेयर दिश। अच्छा, यहाँ पे वापस से Comes to. कॉम्स टू हो गया। Come. अब अपन ईयर से कॉम्ट ईयर, उसका कॉन्जुगेशन सही करना है बस अपन को, कॉम्ट ईयर। हाँ. क्या तुम लोग आ रहे हो, क्या तुम लोग आ रहे हो, इसका मतलब क्या हो गया प्लूरल के अंदर, क्या कि बहुत सारे बैठे हैं, क्या तुम आ रहे हो, कॉम्ट ईयर, बाढ़ में जाओ नहीं आ रहे हो तो, ठीक है। और जी बड़ा वाला, तो कॉमन जी, common Z कॉमन जी, Common Z. ओके, ये हो गया। जी इज, शी इज वेरी इंटेलिजेंट, जी इज वेयर They इंटेलिजेंट, are intelligent Yeah. Z is there. Intelligent. इंटेलिजेंट का इंटेलिजेंट ही रहता है इंटेलिजेंट बोलते, Intelligent. इंटेलिजेंट बोलेंगे उसको। Intelligent, yes. हाँ, Intelligent. Sven, Otto, what आर यू वॉचिंग, Watching. क्या देख रहे हो तुम लोग हैं? So Sven, Otto, was out Z. वर्ब कौन सी लगाई? लगाने में तो मैं गलत लगाया था, लेकिन क्या नाम, वास, वास मैंने लगाया था, वो फिर से दो वर्ब, वर्ब है कौन सी, वर्ब है कौन सी, वॉचिंग। watching वॉचिंग नहीं है क्या? अब ये आर को छोड़ दिया करो मैं सोचा प्रभु, वॉचिंग का पता नहीं है। इसको छोड़ दो, है ना। Was yeah. हाँ, वर्ब क्या है, वॉचिंग। वॉचिंग यहाँ पे आप लोगों को जो पढ़ाई है उसके हिसाब से जेहन ही यूज कर लो, Zehen. जेहन, ठीक है। वैसे नितिन तुमने सही यूज Yes, किया, sir. गुकन, गुकन, Right. वो सही है, वो ज्यादा सही है इसके हिसाब से। अलग अलग नाम और भी चीजें आती है जैसे हाँ, एक्चुअली यहाँ पे जो वॉचिंग जो है ना, वो उसके लिए वर्ब आएगी गुकन, वास गुक्स टू, वास गुक्स टू। एक जर्मनी के अंदर जैसे सीरियल भी आता है, कॉमेडी सीरियल है, वास गुक्स टू, नॉट सीरियल नहीं है एक्चुअली, एक यूट्यूब चैनल है, एक आई थिंक टर्की का एक आदमी है, वो बनाता है वीडियोस, कॉमेडी वीडियोस हैं, वास कुक्स टू, इस तरह से, इस नाम से कि वास कुक्स टू व्हाट यू आर वॉचिंग, उसका ट्रांसलेशन ये होता है। तो स्वेन ओटो वास, अब मैंने बोला कि गुकन, अब जब आप लोगों को बताई दिया तो वो वर्ब सीख ही लो, गुकन ये वर्ब है, ठीक है। और ये इरेगुलर वर्ब नहीं है, सॉरी क्या बोलते हैं, ये इरेगुलर वर्ब है। रेगुलर वर्ब Yes. अरे सॉरी सॉरी, क्या मुंह से निकल रहा है, ये रेगुलर वर्ब है, यानी रेगल मैसिश है। ये रेगुलर Regel. इंग्लिश में कंफ्यूजन नहीं रहता मेरे को।
ये अगर मैं जर्मन में बोलूं तो ये regelmäßig वर्ब है, इसमें कोई चेंज नहीं होता, डू के साथ में सेम वही गुक्स टू हो जाएगा, इसमें कहीं कोई उमलाउट नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं हो रहा है, सिंपल वर्ब है। जैसे माखन है, माखन का मार्क्स्ट हो जाता है, ऐसे ही गुकन का गुक्स्ट हो जाएगा। तो लेकिन यहाँ पे दो जने हैं तो ईयर आएगा, वास गुक्ड ईयर, वास गुक्ड ईयर। और वहीं पे यू जो है हमेशा कंफ्यूजिंग, सब्जेक्ट एक्चुअली कौन सा है, डू है, ईयर है, जी है, तो तीनों से ही सेंटेंस बना लो। Suchst du? Was suchst du? तो मैं आप लोगों को हाउस ऑफ गाबा और भेजूंगा, आज ज़्यादा मिलेंगे, बिकॉज अकुजाटिव अब धीरे धीरे आप लोगों को क्लियर हो रहा है कि क्या चेंज हो रहे हैं, क्या अपन को कौन सी टेबल में देखना है, बेस्टिम्ड आर्टिकल है, अनबेस्टिम्ड आर्टिकल है, वगैरह वगैरह। ठीक है, अब जो है आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए अब सिर्फ अकेला, अभी तक अपन ने देखे हैं ज़्यादातर एग्जाम्पल थे जाइन और हाब्न वाले, अब अपन दूसरी वर्ब्स को भी ज़्यादा यूज़ करेंगे ताकि आपको अकुजाटिव कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और अपन कल जो है वो डाटिव वाले वर्ब को देखेंगे, ठीक है, इसके बाद या फिर अकुजाटिव को और अच्छे से डिटेल में समझेंगे कल, यानी थोड़े बड़े बड़े सेंटेंस बनाएंगे, और सेंटेंस ना यानी नॉर्मल सेंटेंस ना बना के अपन क्वेश्चंस बनाएंगे, क्वेश्चंस Right, बनाना सीखेंगे, वेन वगैरह, वेयर, वेन, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद में डाटिव को सीखेंगे मंडे को। ओके, तो कल की क्लास भी इंपॉर्टेंट है। तो रुस्तम आपको वीडियो देखना है। sure sir. Okay, so das war alles für heute und ich danke euch. Bis Montag. Bis morgen und bis Montag. Ja.